Indian economy in 1950 to 1990. In previous chapter we have studied what was the situation and conditions of Indian economy at the eve of independence, right? So after independence we planned some economic development growth in the country. We had government, proper Indian government which will work for our India only. So what were the major developments after independence in this 40 years when actual planning started in 1950? So from 1950 to 1990, what were the developments, what were the focuses of planning? All this we will cover in this chapter 2 of your second book. Types of economic systems. We all know that different economy follows different economic system. So there are 3 types generally. One is capitalist economy, the other is socialist economy, and the third is mixed economy. So what is the difference between capitalist, socialist and mixed economy? In capitalist economy, students, what happens कि private individuals owns all the factors of production and they undertakes production activity. तो जब private individuals हमारी इकोनॉमी में डोमिनेट करेंगे तो क्या मोटिव होगा उनका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वो इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे. व्हाट दे विल फोकस ऑन, दे विल फोकस ओनली ऑन प्राइवेट मैक्सिमाइजेशन, राइट? दिस इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. Socialist economy, what happens, as the name is suggesting, socialist economy, it is generally made for public welfare. तो socialist economy में जो factors of production है, they are owned by whom? They are owned by government, and government undertakes all production activity for the sake of society's welfare. Okay, this is socialist economy. China is an example of modern socialist economy. Now, mixed economy. Generally in India we follow what? We follow mixed economy. Mixed economy. Mixed economy is a mixture, जैसा कि नाम बता रहा है, it is a mixture of capitalist and socialist economy. Okay, means what? Here capitalist focuses on private maximization and socialist means public sector unit focuses on society's welfare. Socialist means the factors of production are production is undertaken by the government and factors in production are owned by whom? By government, and their motive is social welfare. Capitalist economy means what? कि factors in production are owned by private individuals and their motive is profit maximization. So India is a truly mixed economic system. Why? Because here public sector units and private sector units coexist. What are the 3 important decisions taken by an economy? Any economy में, when we all know that our resources are limited, human wants are unlimited. ठीक है, ये लास्ट ईयर पढ़ा ना आपने, human wants are unlimited, resources are limited and limited resources have alternative uses. तो क्वेश्चन कम्स, जो 3 important central problems आ जाती हैं वो आती हैं क्या? They comes what to produce, how to produce and for whom to produce. ये 3 basic central problems economy में arise कर जाती हैं. What to produce means rice produce करें कि wheat produce करें, hospital बनाएं कि park बनाएं available land पे because our resources are limited. How to produce, कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें. लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर पाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो बेटर प्रोडक्शन होगा और होमोजीनियस प्रोडक्शन होगा. बट मशीन्स चाहिए और मशीन के लिए हैवी कैपिटल चाहिए. फॉर whom to produce, this concerns this focuses on distribution of income in the country. जो factors of productions हैं उनके लिए हम कैसे income को distribute करें, this questions come in your third problem, that is for whom to produce. What now after this we all have planned some 5-year plans. ठीक है, 5-year planning start हुई country में. अब इससे पहले कि मैं पढ़ूँ कि 5-year plans क्या थे, we must understand what do you mean by economic planning. ठीक है, तो economic planning
तो आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द गवर्नमेंट सॉ दैट सिचुएशन इज वेरी बैड रिगार्डिंग आवर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, एंड सिंस आवर एग्रीकल्चर इज़ वेरी बैकवर्ड एंड टोटली डिपेंडेंट अपॉन सीजन एंड वेदर, मर्सी ऑफ नेचर ओनली, अगर अच्छी रेनफॉल हो गई, गुड इरिगेशन हो गया तो क्रॉप्स फ्लरिशेस, लेकिन फ्लड्स आ गए या ड्रॉट हो गया तो आपकी सारे क्रॉप्स ख़राब हो जाते थे, एंड वी हैव टू पे ह्यूज प्राइसेस फॉर फूड ऑल्सो, और वी हैव टू इम्पोर्ट फूड थिंग्स, ठीक है। तो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ जनरली व्हाट कि यू आर मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस, आप प्रॉपरली प्लान कर रहे हो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर 5 ईयर कॉन्टीन्यूस। एक ईयर आपका, एक 5 ईयर प्लान जो होता है दैट इज़ ऑफ हाउ मच? एक 5 ईयर प्लान आपका 5 साल के लिए चलता है, पंचवर्षीय योजना बोलते हैं इसको, 5 साल के लिए प्लानिंग करती है गवर्नमेंट। तो अब इनके गोल्स क्या थे? ये किसने प्लानिंग करी? गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी, पहली चीज़। अब गवर्नमेंट ने प्लानिंग तो करी बट इसके लिए कोई कमीशन बनाया गया होगा, तो फॉर दिस प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन सेटअप, राइट। बट अब उस प्लानिंग कमीशन का नाम करेंटली इट हैज़ बीन चेंज्ड। सेटअप कब हुआ था? 1950 में, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया है। बट उसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन उसके ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर इज देयर एज एन चेयरमैन, ठीक। तो क्या गोल रहे इन 5 ईयर्स प्लान के? तो फर्स्ट गोल वाज ग्रोथ, फर्स्ट गोल वाज ग्रोथ। अब ग्रोथ की लगातार कंट्री जो है ग्रो करनी चाहिए, और कंट्री की ग्रोथ जनरली मेजर होती है किस चीज़ से? कंट्री की ग्रोथ मेजर होती है हमारे जीडीपी से। किससे मेजर होती है? कंट्री की ग्रोथ मेजर होती है जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वी हैव स्टडीड दिस इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन अ गिवन ईयर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज़ योर जीडीपी। ये जीडीपी अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर तो इट इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ, ओके। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। अब आज हम सैटेलाइट के एरा में हैं। किस एरा में हैं? सैटेलाइट्स के एरा में हैं, लेकिन हमारे आज भी जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं? सी, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है 5 ईयर जो प्लान्स थे उन्होंने फर्स्ट फोकस किया कि ग्रोथ होनी चाहिए, लगातार प्रोडक्शन हमारी कंट्री का बढ़ना चाहिए, और उसका पर्पस क्या था? कि हमारे पास फूड की शॉर्टेज नहीं हो। सेकेंड पर्पस था कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं और दूसरी कंट्रीज़ पे हमको अपने फूड के लिए एटलीस्ट डिपेंड नहीं करना पड़े, ठीक है। दैट वाज द पर्पस। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम ओल्ड टेक्निक्स को छोड़ें, हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ लेटेस्ट यूज़ करें, ड्राई इरिगेशन यूज़ करें, ड्राई कल्टीवेशन यूज़ करें, लेटेस्ट टेक्निक, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करें, लेटेस्ट फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, ठीक है। तो हम मॉडर्नाइजेशन करें हर प्रोडक्शन एक्टिविटी में, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करें, जिससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। मशीन्स यूज़ करें, प्रोडक्शन इम्प्रूव करेगा तो हमारी कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों के पास ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा इनकम आएगी और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करेगा, पावर्टी भी डिक्लाइन करेगी। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फोकस वाज मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेल्फ रिलायंस इट मीन्स आप अपनी ही कंट्री पे अपनी नीड्स के लिए अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन जो हुआ है उस पर डिपेंड करो। रिलाइंग ऑन सेल्फ, सेल्फ यानी खुद पर डिपेंड करें। रिलायंस, ठीक है। रिलायंस कंपनी पे मत चले जाना, दिमाग चले जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिपेंडेंट होने की, यानी कि अपने फूड जैसी बेसिक नीड्स के फुलफ़िल करने के लिए हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और सफिशिएंट फूड खुद ग्रो कर लेंगे तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं अपने फूड जैसी बेसिक नीड्स के लिए। दूसरा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इंप्रूव होगा, इंपोर्ट्स की वैल्यू थोड़ी कंट्रोल होगी, नीचे आएगी। तीसरी चीज़ क्या होगी? अगर ज़्यादा इंटरेक्शन हम ऑल ओवर द वर्ल्ड करेंगे तो जो एक बार ब्रिटिश रूल को हम फेस कर चुके हैं वो वापस रिपीट भी हो सकता है। तो वी शुड उस समय 1950 जब हम बिल्कुल ताज़े ही उभरे थे आपके ब्रिटिश रूल एंड उसके आफ्टर इफ़ेक्ट से और एक्सप्लॉयटेशन से, तो फर्स्ट फोकस वाज कि भाई ग्रोथ करो,
सेकेंड वॉज मॉडर्नाइजेशन करो, एंड थर्ड वॉज डोंट डिपेंड अपॉन फॉरेन कंट्रीज फॉर योर फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, ग्रो इन विद इन योर कंट्री। जैसे आजकल हम लोग मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी फॉल कर रही है, तो दूसरे कंट्री को इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने से बेटर है कि हम अपनी कंट्री की बनाई चीज़ों को यूज़ करें। ठीक है, यही चल रहा है ना आजकल बिकॉज ऑफ कोरोना एंड कोविड। तो सेम थिंग वॉज एट दैट टाइम कि इंडिया में ही अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरी कंट्री पे हमको डिपेंड ना करना पड़े। उसके 3 रीजंस थे कि हमारे बेसिक नीड्स के लिए हम डिपेंड ना करें, दूसरी चीज़ थी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इंप्रूव होगा, हमको इंपोर्ट के लिए पेमेंट कम करना पड़ेगा, तीसरी चीज़ थी कि दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस हमारी कंट्री में नहीं होंगे अगर हम उनसे ये इस तरह के ट्रेड एक्सचेंज एंड इंटरेक्शंस करेंगे। तो इक्विटी का मतलब तो पता ही होगा, इक्विटी मीन्स इक्वालिटी से ये वर्ड आया, इक्विटी यानी कि विदाउट इक्विटी हम सब ओवरऑल पूरी कंट्री में बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, जो ग्रोथ आपके नॉर्थ में हो रही हो वैसी ही साउथ में हो, वैसी ही ईस्ट में हो एंड वैसी ही वेस्ट